کمٹمنٹ کا تحفظ اتنا نہ کرنا کہ ویکر زمانے کی، کمزور زمانے کی، نالائق زمانے کی کمٹمنٹ کو لائق زمانے میں بھی پورا کرنے کی صحیح کرنا. جھوٹے کے ساتھ جھوٹے زمانے میں ہم نے وعدہ کیا تھا، اب سچ میں ہم داخل ہو گئے، وعدہ پورا کرنا شرط نہیں ہے. یہ وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی جھوٹے تھے، تم بھی جھوٹے تھے، اور ہم سچے ہو گئے ہیں. اللہ تجھے بھی سچ کی توفیق عطا فرمائے. سچا آدمی جھوٹا وعدہ پورا نہ کرے، یہ بات یاد رکھے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سو کمٹمنٹ کی جو زمانہ اور کیفیات بات بھائی سمجھا رہی. کمٹمنٹ کیا ہے؟ مثلاً سب پیر فقیری لے لو جی، پیر مرید ہے، استاد شاگرد لے لو، کمٹمنٹ ہے نا. دوست احباب، سیاست نامہ، میاں بیوی، کمٹمنٹ. اس نے وعدہ کی تو ہمارے ساتھ، ہمارے میاں نے، میاں بیوی نے، کہ اب ہم مطلب ایسا واقعہ ہوگا. وہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اب ہم اپنے میکے نہیں جائیں گے، وعدہ ہو گیا. اب یہ کون سا مطلب مومنٹ تھا، کون سی کیفیات تھی، کیا اس کی افادیت تھی، کیا ضرورت تھی. جب دوسرا وقت تجب کی بات یہ ہے، ہم وعدہ آج جو کر رہے ہیں آنے والے وقت کا، اب جو بھی کمٹمنٹ ہم کر رہے ہیں نا آنے والے وقت کے لیے، آج کے حالات اگر برقرار نہ رہے تو وعدہ کیسے پورا ہوگا. سو کمٹمنٹ کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو آل دی کنڈیشن جو آپ پریویل کر رہی ہیں. اگر آپ کی کنڈیشن نہ پریویل کریں تو شاید کمٹمنٹ کا تو مفہوم نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ اب یہاں سے ایک راز ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے آپ کی، وہ ایسی ہے کہ ہر حال میں پوری ہو سکتی ہے، ہر زمانے میں پوری ہو سکتی ہے، غریبی امیری دار میں پوری ہو سکتی ہے. اور تو اب آپ کے لیے راز یہ حال ہوا کہ آپ کی ایک کمٹمنٹ ہو چکی ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک آپ کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے آپ کے بتائے بغیر موت کے ساتھ، وہ بغیر سائن کی وہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے. اس نے آپ سے کہا ہے ہم آئیں گے، ہم نے بھی کہا کبھی آ جانا، وقت ملا تو بہتر ہے، نہ آئیں یا تو اچھا ہے. اس نے کہا پھر بھی ہم آنا ہے، چلا آ جائے. کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ ہم جائیں گے اس کے ساتھ، کمٹمنٹ ہو گئی ہے. اور زندگی کی وابستگی کو نبھانے کی بھی ہوتا یہ ہے کہ ایک وابستگی، ایک محبت ہم سے وعدہ لے لیتی ہے پکی محبت کا، اور باقی کے فرائض بعض اوقات ہم سے فوت ہو جاتے ہیں، سزا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کسی شخص سے اتنا وعدہ نہ لو کہ اس کے باقی فرائض فوت ہو جائیں. بہت سمجھتے ہو، انتقال کر جائے. کیا وعدہ لے لیا اور خدا کو بھول جائے، خدا کے رسول کو بھول جائے، یا وعدہ لے لیا تو وہ اپنی زندگی بھول جائے. اس لیے کمٹمنٹ جو ہے یہ آنے والے وقت کے اندر کوئی خاص عمل کرنے کی پابندی کے وقت سے پہلے اظہار کا نام ہے. یہ بات سمجھے؟ آنے والے زمانے میں کسی کام کو کرنے کی، وعدہ کرنے کا قبل از وقت جو اظہار ہے اسے آپ کمٹمنٹ کہتے ہو. اور جب وہ وقت آتا ہے تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں. ہم آپ کے لیے فلاں جگہ سے جا رہے ہیں، فلاں حالات کے لیے فلاں تحفہ لائیں گے. جب ہم فلاں جگہ پر پہنچے تو حالات کچھ اور تھے، زمانہ کچھ اور تھا، سورج کسی اور جگہ سے نکل رہا تھا. اس لیے بہتر یہ ہے مسلمان، کیونکہ وعدوں کی بڑی پابندی ہے، مسلمان عام مسلمان سے زیادہ وعدہ نہ لیے کرے. یہ یاد رکھنا، وعدوں میں پابند نہ کرنا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بڑا سخت خطرناک بات ہوتی. اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو زیادہ اذیت نہ دیا کرو. اذیت کیا ہوتی ہے؟ تکلیف نہ دیا کرو، وعدے نہ لیے کرو، پابندیاں نہ لیا کرو، ناروا بوجھ نہ رکھا کرو سال کے اوپر. تم ضرور ہمارے ساتھ شام کو چلو گے، تم ضرور چلو گے، تم ضرور چلو گے. وہ شام آئے پتہ نہیں اس کا مزاج میں کچھ داخلی خارجی کیفیات ہی کچھ اور ہو. اس لیے چل سکا تو چلنے دو، نہیں چل سکتا تو در گزر کر. تو کمٹمنٹ آپ بھی نہ کیے کر زیادہ. آپ آؤ گے کل، کہتا ہاں ممکن ہوا تو آئیں گے. یہ نہ کہنا ہم ہر صورت آئیں گے، مشرق مغرب سے شمال ہو جائے، جنوب ہو جائے، ہم ضرور آئیں گے. پتہ نہیں کل کیا موسم آتا ہے. وعدے زیادہ نہ کیے کرو،
ज्यादा वादे करने वाला झूठे वादे भी कर जाता है, ज्यादा वादे लेने वाला मजबूरी के वादे भी ले जाता है। इसलिए ऐसा ना हो कि दूसरा आदमी मामरे मजबूरी को वादा कर दे। पाबंदियां ना लिए करो, आपके साथ वाबस्तगी ना मांगा करो, कमांड ना की करो वादे। दिल का वादा होता है पक्का, ये चलने से। सिंसेरिटी जो है ये इजहार में नहीं आती और ये अमल में आ जाती है। सिंसेरिटी की खूबी है। दो सिंसियर लोग, ये कभी आपने, आप तो खैर पत्नी आपने देखा नहीं है, कभी आप वो तीतर देखा आपने, परिंदा होता है, ये दो लोग पाले जाते हैं पिंजरे में, और जब सैर कराने ले जाते हैं ना लोग, तो एक पिंजरे में होता है, दूसरा साथ छोड़ देते हैं, वो बेचारे पीछे 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 लगे रहते हैं। कभी देखा आपने? नहीं देखा, ये मंजर नहीं देखा आपने। तीतर जो है ना, इसका मादा और नर जो है, एक को पिंजरे में रहने दो, एक को साथ कर दो, वो नहीं जाएगा। मगर यह कि आप सैर करने ले जाओ, दूसरा पीछे 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 पैदल भागता चला आएगा। एक पिंजरे आप लड़के जा रहे हैं, दूसरा पिंजरे में आजाद चला गया। ये कमिटमेंट है। अब उसी कमिटमेंट जो है ना, उसमें आज़ादी परवाह को नहीं है। तो आपके यहाँ कमिटमेंट जो है, कभी बदले में दिल की कमिटमेंट में कोई वादे का ऐलान नहीं है और वादा कायम है। तो मोहब्बत के वादे न लिए करो, पाबंदियां न लिए करो, कस्में न लिए करो, और मजबूर न किए करो, और सर झुका के गर्दन तोड़ के वादे न लिए करो। वादे मोहब्बत के और बगैर ऐलान के कायम रहते। कमिटमेंट होता है वाबस्तगी का ऐलान, किसी ज़माने में, आने वाले ज़माने में किसी काम करने के ऐलान कि हम ऐसा काम करेंगे। तो कमिटमेंट ना किया करो ना लिया करो। बस कमिटमेंट जो है बगैर अनडिक्लेयर्ड कमिटमेंट सबसे ज़्यादा देर पा होती। कौन सी देर पा कमिटमेंट? जो अनडिक्लेयर्ड हो। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे देर पा निकला कैसे? बरतानिया का निकला ना। और लिख ले कि आपने 25 का आइन तो हमारे सामने आपने बर्बाद किए आप लोगों ने। ये आइन नंबर पता नहीं कौन सा था, फिर एक आइन नंबर और टूटा, फिर और टूटा, फिर एक लीडरशिप आई आइन तोड़ गई, फिर एक और लीडरशिप आई तोड़ गई, और अब आपने एक नई कहानी शुरू कर दी है। आइन साल, आइन शिकन इदारे, कानून साज असम्बलियाँ, कानून तोड़ असम्बलियाँ, ये सारी कमिटमेंट हैं। इसलिए आप खुला रहने दो। सबसे अच्छा कौन आइन है? लिखो ही ना। मोहब्बत का आइन ना लिखा करो, मोहब्बत को खतूत से भी आज़ाद रखा करो, बेहतर है। तो कमिटमेंट को डिक्लेयर से आधार रखो, डिक्लेरेशन से आधार रखो। डिक्लेयर ना करो, डिक्लेरेशन बिल्कुल ना लो कमिटमेंट की। आप हमारे साथ वफा करोगे तो क्या करेगा, दिखा नहीं करेगा, जैसे हालात है कि देखना। आज अगर क्या बीत गया उसे, तो आगे पता नदी है, नाला है, दरिया है, क्या है, और आगे पता समाज है, मजबूरियां हैं, क्या है हालात। इसलिए आप उसको छोड़ दो। पता नहीं मतलब कौन सा वक्त आता है, किस पर क्या आता है, आगे अल्लाह देख, अल्लाह मेहरबानी करे। आपका सवाल क्या था? कौन से ऐसे काम हैं कमिटमेंट के साथ करने चाहिए? क्या कमिटमेंट के साथ काम जो है करने चाहिए, कमिटमेंट कर दी जाए? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कमिटमेंट के जमाने की कैफियत को बहाल रहा जाए तो कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। जमाना नहीं है, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। आप आते मेरे, यानी कि इससे यूं कहो कि जब इंसान अपने मकाम पर नहीं रहता, दो आदमियों की कमिटमेंट है, और दोनों अपने मकाम पर अगर न रहें, तो कमिटमेंट कौन, जिम्मेदार कौन होगा? इस इनकलाब को कहते हैं, एक शेर सुन लो अगर आप समझ आ गया आपको तो। इस इनकलाब को कहते हैं इर्तिकाए हयात। सुभान अल्लाह है। इस इनकलाब को कहते हैं इर्तिकाए हयात, कि मैं भी मैं नहीं, अब तू भी कब रहा है तू। कि मैं तू का वादा तो था बड़ा देर का पुराना, अब जमाने में इनकलाब आ गया, इर्तिका हो गई, जिनकी तरक्की कर गई है। न मैं रहा, न तू रहा, वफा किसकी? आपने कल बदल की तो मार साथ कहते कल मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, आज मैंने कलमा पढ़ लिया। वो तमाम काफिर जो कलमा पढ़ के मोहम्मद हो गए थे, काफरों से वाबस्तगी के सारी कमिटमेंट से आजाद होके आ गए। आप बात है मेरे, कहते कल मेरी जहालत का जमाना था, आज मेरी आंखें खुल रही हैं, आज कमिटमेंट किस बात की? तो मैं कमिटमेंट की जबर से मैं घबराता हूं, आपको भी आजाद करता हूं। नहीं आप बात समझे? कमिटमेंट के जबर में ना जकड़ना किसी इंसान को।
लोहे का पिंजरा बना के उसको बंद कर देना। कमिटमेंट का जकड़ा बंद मत लगाओ। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है कमिटमेंट लेना, वादा लेना। वादे की बंदी अच्छा कसम खाओ कि तुम आइंदा मतलब इस लाइन से आगे नहीं जाओगे, पता नहीं बेचारा लाइन से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। लाइन से आगे जाएगा तो कहानी बनेगी ना, सारी रामायण तब लिखी जाएगी, लाइन से आगे क्रॉस करेगी वो। लाइन क्रॉस होती है हमेशा ही, राम की बीवी हो तब भी लाइन क्रॉस होती है, और अगर आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हो बहिश्त में तब भी लाइन क्रॉस होती है। मैं आपको क्या बताऊं, आपको बात समझ नहीं आती कि वादा अल्लाह ने लिया तब भी मतलब में वादा बदल गया। ऐसी बात है, ला तक़रबा हाज़िही शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, खबरदार इस दरख्त के करीब न जाना, जालिमों में हो जाओगे। उन्होंने कहा यस सर, ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह हम नहीं करेंगे। खा रहे थे, थोड़ी देर के बाद अल्लाह के साथ वादा किया, खा रहे हैं, फिर रब्बना बड़ा जुल्म हो गया, माफी दे दो, मारे गए, बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा चलो माफ कर दिया, अब ये काम कर लो दुनिया वाला, फिर आप मेरे पास आ जाना। वादा आप बताए क्यों नहीं वादा पूरा की, सरकार वादा नहीं पूरा कर, गलती होगी। आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही और हिंदुओं के अंदर रामायण की बात है, ये लाइन से बाहर नहीं जाना, बाहर जादू है, पक्का खबर है, अपनी खबर रावण है, बाहर लाइन पार हो। ये तो होता रहता है हमेशा ही, वो हर जगह वो एक कमिटमेंट को क्रॉस करने के बाद दो बनाया हुआ अल्लाह ताला ने कि मेरी कमिटमेंट को तोड़ने वाले उधर जाएंगे। अब इंसानों को काफर ना बनाया करो, वादों के चोर ना बनाया करो लोगों को। आज के बाद तुम ये करोगे ना, तुम अपनी मर्जी करना, क्या करो, तुम अपनी मर्जी करना, ख्याल करना कि कहीं तुम्हारी मर्जी मेरे खिलाफ ना हो। हमारा भी एहतराम, अपना भी लिहाज। तो कौन सी कमिटमेंट बेहतर है, अपना भी एहतियात, अपना भी एहतियात। मतलब ये अच्छी बात है, यह आपके वाकयात है, ठीक है। कमिटमेंट का हमारी तरफ से सब कमिटमेंट आजाद, कभी पाबंद न करना, मजबूर न करना लोगों को, और लोगों को उनकी मर्जी के दायरे में रहने देना। बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ी अच्छी चीज है। एक चीज से घबराता है, जबर। आप बात मेरे, जबर से बचने के लिए बैठ छोड़ा है इसने कि जबर न मुझे को करे। ये एक चीज से भागा, जन्नत छोड़ दिया, जबर से बचता है। आगे जिंदगी का जबर अलग है, वो तो है ही सही। जिस तरह तुम जबर बर्दाश्त नहीं करते ना, इस तरह तुम्हारे महबूब भी जबर बर्दाश्त नहीं करते, याद रखो। दोस्त को भी आजाद कर दो, जबरदस्ती को शाम को आप आना, अगर आ सके तो आप आ जाना, ना आ सके तो मजबूरी नहीं। मैं 12 इंतजार करूंगा, 2 बजे से इतने बजे तक, 4 बजे से 9 बजे तक, जो भी इंतजार आप करोगे। ये ना कहना मैं जिंदगी से मौत तक इंतजार करूंगा, पता नहीं तुम आओ के ना आओ, यही जगह रहेंगे। बर्बाद ना करना कमिटमेंट वालों को, आपकी मेहरबानी है। अच्छा, हुकूमत के साथ अगर आप करो कि मेरा वादा है हुकूमत से मैं फिरूंगा, मजबूरी है दफ्तर की, कहीं ऐसा ना हो कि पहले हुक्म खुदा का तोड़ दो, ऑफिस की मजबूरी है मुझ पर, खुदा का हुक्म तोड़ते जा रहे हो कि फाइल के ऊपर जो झूठ लिखना है जरूर लिखना पड़े, ऐसा हो गया तो ऊपर चाहिए, सरकारी हुक्म है, वो खुदा के हुक्म के खिलाफ हो जाओगे। बस एक कमिटमेंट आपकी हो चुकी है, खुदा का हुक्म मानो, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो, वो हो चुका आपके आने से पहले ही। बाकी जिंदगी का हुक्म मानते जाओ, दोस्तों को पाबंद न करो, मजबूर न करो, हुक्मनामे जारी न करो, इजी इजी रहने दो, साफ साफ।